जय राम धावा कुज बिहारी गोपी जाना वाला भावरधारी गोपी जाना वाला भावरधारी जय राम कुज बिहारी जय राम कुज बिहारी यशोदानंदन भज जन रंजन यशोदानंदन भज जन रंजन यमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा बनचारी जय राम जय राम बिहारी गोपी जाना वाला गोपी जाना वाला यमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा बनचारी जय जय राम बिहारी गोपी जाना वाला सोदना जन जन जन
Yashodanandana Braja Janarandana Jamnati Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Radha Shivasadi Gaur Bhaktavinda Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Radha Shivasadi Gaur Bhaktavinda Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Radha Shivasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Gaurita, 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 Jai Gaurita. Jai Radha Pasadi Radha Pasadi Radha. Jai Sita Ram Lakshman Hanuman, Sita Ram Lakshman Hanuman. Hare Ba, Hare Ba, Hare Ba, Hare Ba. Hare Ba, Hare Ba, Hare Ba, Hare Ba. Jai Om Shripada Paramahansa Prabhupada Jai Survayangeshwara Abhechana Bhaktivedanta Swami Shri Prabhupada Maharaj ki. Jai Om Shripada Bhaktivedanta Saraswati Goswami Prabhupada Maharaj ki. Ananta Koti Vaishnavrinda ki. Namacharya Shri Haridas Thakur ki. Prem Shri Shri Krishna Chaitanya Prabhu Dasa Shri Gaur Bhaktivinoda ki. Shri Shri Radha Krishna Gopinath Shampunda Radhakunda Giri Gauram ki. Vrindavan Dham ki. मायापुर धाम की, गंगा माई की, जमुना माई की, तुलसी देवी की, भक्ति देवी की, समवेद भक्तवृंद की, गौर प्रेमानंद. All glory to the Simul Mori. All glory to Simul Mori. All glory to Simul Mori. All glory to Sri Guru and Sri Guru. I thought you were in Gurgaon. Staying today? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam Dasaskan Pratham Adhyaya, Shlok number 13. 10:1:13. I'm sure everyone has a pocket, has a telephone in the pocket. Nai Sati, light. Nai Sati Du Anas. मुझे light चाहिए. Nai Sati Du Shah Kashun Mam.
त्यक्तमपि बध्यते बन्तं त्वं मुखं भोजा स्यूतमहि कथमृतम् नायसति दूषः कशन्माम् त्यक्तोदमपि बाधते पिबन्तं तं मुखं भोजो स्यूतमहि कथमृतम् नायसति दूषः कशन्माम् त्यक्तोदमपि बाध्यते पिबन्तं त्वं मुखं भोजा स्यूतमहि कथमृतम् नैसाति दुस्सहा चुन्माम् त्यक्तोदमपि बाधते पिबन्तं त्वन्मुखाम्भोज च्युतं हरिकथामृतम् वैष्णो देवियाँ शब्दार्थ न नहीं ईशा यह सब अति दुस्सह सहने में अत्यंत कठिन छुत भूख माम मुझको त्यक्त उदम जल ग्रहण करना छोड़ देने के बाद अपि भी बाधते बाधा नहीं डालता पिबंतम पीते रहने पर त्वत् मुख अम्भोज च्युतम आपके मुख कमल से निकला हुआ हरि कथा अमृतम कृष्ण कथा का अमृत। अनुवाद मेरे पीछे बोले। मृत्यु द्वार पर होते हुए अपने व्रत के कारण मैंने जल ग्रहण करना भी छोड़ दिया है, फिर भी आपके मुख कमल से निकले कृष्ण कथा रूपी अमृत का पान करने से मेरी असह्य भूख तथा प्यास मुझे किसी तरह भी बाधा नहीं पहुंचा रही। तात्पर्य प्रभुपाद के द्वारा शिला प्रभुपाद की 7 दिनों के भीतर मरने की तैयारी करने के उद्देश्य से महाराज परीक्षित ने भोजन तथा जल ग्रहण करना छोड़ दिया था। मनुष्य होने के नाते उनको भूख तथा प्यास लगनी स्वाभाविक थी,
इसलिए सुखदेव गोस्वामी कृष्ण कथा बंद करना चाह रहे होंगे, किंतु महाराज परीक्षित उपवास रखने के बावजूद भी थके हुए नहीं थे। उन्होंने कहा, मेरे उपवास से उत्पन्न भूख तथा प्यास मुझे नहीं सताती। एक बार मैं अत्यंत प्यासा था तो जल पीने के लिए समीक मुनि के आश्रम गया था, किंतु मुनि ने मुझे जल नहीं दिया। अतः मैंने उस मुनि के कंधे पर एक मृत सर्प लपेट दिया था, जिसके फलस्वरूप ब्राह्मण बालक ने मुझे साप दे डाला। किंतु अब मैं स्वस्थ हूँ। मैं भूख तथा प्यास से तनिक भी विचलित नहीं हूँ। इससे सूचित होता है कि यद्यपि भौतिक स्तर पर भूख तथा प्यास बाधक बनती हैं, किंतु आध्यात्मिक स्तर पर थकान जैसी कोई वस्तु नहीं होती। सारा संसार आध्यात्मिक प्यास के कारण कष्ट उठा रहा है। हर जीव ब्रह्म या आध्यात्मिक आत्मा है और उसे अपनी भूख प्यास बुझाने के लिए आध्यात्मिक भोजन की आवश्यकता पड़ती है। किंतु दुर्भाग्य ही कहेंगे कि संसार कृष्ण कथा के अमृत से सर्वथा अनजान है। इसलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन दार्शनिकों, धर्मविदों तथा सामान्य लोगों के लिए वरदान तुल्य है। कृष्ण तथा कृष्ण कथा में निश्चित रूप में विशेष आकर्षण है। इसीलिए परब्रह्म कृष्ण अर्थात सर्वाधिक आकर्षक कहलाते हैं। अमृत शब्द चंद्रमा का भी द्योतक है और अम्बुज का अर्थ है कमल। सुहावनी चांदनी तथा कमल की सुहावनी सुगंध मिलकर सुखदेव गोस्वामी के मुख से कृष्ण कथा सुनने में आनंद प्रदान कर रही थी। कहा भी गया है, मतिर्न कृष्णे परतः सुतो वा मिथोभिपद्यते गृहे व्रतानाम अदांत गोभिर विशताम तमिश्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम। भौतिकतावादी जीवन के प्रति अत्यंत आसक्त व्यक्ति अपनी अनियंत्रित इंद्रियों के कारण नारकीय स्थिति की ओर बढ़ते जाते हैं और एक बार चबाए हुए को पुनः पुनः चबाते रहते हैं। उनमें ना तो किसी के उपदेश से, न अपने आप, न ही इन दोनों के द्वारा कृष्ण के प्रति रुचि जागृत होती है। श्रीमद् भागवत 7:5-30। संप्रति सारा मानव समाज चर्वित श्रवण करने में लगा है। पुनः पुनः चर्वित श्रवणानाम। लोग एक शरीर में जन्म लेकर मरने और पुनः दूसरा शरीर धारण कर फिर मृत्यु भोगने के लिए तैयार रहते हैं। मृत्यु संसार वर्तमनी। इस जन्म मृत्यु के चक्र को रोकने के लिए कृष्ण कथा अथवा कृष्ण भावनामृत नितांत आवश्यक है। किंतु जब तक सुखदेव गोस्वामी जैसे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से कृष्ण कथा नहीं सुनी जाती, तब तक सारी भौतिक थकान को दूर करने वाली कृष्ण कथा के अमृत का ना तो आनंद लिया जा सकता है, न ही आध्यात्मिक अस्तित्व में आनंदमय जीवन भोगा जा सकता है। जब हम कृष्ण भावनामृत आंदोलन के बारे में सोचते हैं तो हम देखते हैं कि जिन्होंने कृष्ण कथा रूपी अमृत का आस्वादन कर लिया है, वे सारी भौतिक इच्छाओं का परित्याग कर देते हैं। किंतु जो कृष्ण या कृष्ण कथा को नहीं समझते, वे कृष्ण भावना भावित जीवन को मस्तिष्क की धुलाई या मन नियंत्रण मानते हैं। एक और जहाँ भक्तगण आध्यात्मिक आनंद का अनुभव करते हैं, वहीं अभक्तों को ये देखकर हैरानी होती है कि भक्तों ने भौतिक लालसाओं का परित्याग कर दिया है। अनुवाद फिर से है। मृत्यु द्वार पर होते हुए अपने व्रत के कारण मैंने जल ग्रहण करना भी छोड़ दिया है। फिर भी आपके मुख कमल से निकले कृष्ण कथा रूपी अमृत का पान करने से मेरी असह्य भूख तथा प्यास मुझे किसी तरह भी बाधा नहीं पहुंचा रही। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मया ददाति स्वाम। वन्देऽहं श्रीगुरु यतिकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च रूपं शरणागतं
श्री राधा कृष्ण पदान सहागना ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुस्तुति देवी प्रणमामि हरे प्रिय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण निष्पति दूस कृष्ण माम शक्तमपि बाधते पिबंतम त्वं मुखम भोजे अच्युतम हरि कथामृता। तो ये श्लोक का उच्चारण परीक्षित महाराज कर रहे हैं। ये श्लोक 10 स्कंद के प्रथम अध्याय में प्राप्त होता है। 10 स्कंद में भगवान की लीलाओं का वर्णन है। वहाँ पढ़ते हो कि किस प्रकार भगवान प्रकट हुए थे। तो परीक्षित महाराज क्या कह रहे हैं? उन्हें एक ब्राह्मण ने श्राप दिया। परीक्षित महाराज राज ऋषि थे। दूसरे शब्दों में राजा भी और ऋषि भी, संत भी। और परीक्षित महाराज जंगल में थे, प्यासे, पानी की खोज में थे। वहाँ उन्होंने देखा एक सामने की कुटिया में थोड़ी रोशनी है। तो वो समझ गए यहाँ कोई संत रह रहा होगा। तो वहाँ गए इस उम्मीद के साथ कि उनकी यहाँ स्वागत होगा। प्रभुपाद जी कहते थे अगर कोई शत्रु भी आपके घर में आए तो उसका स्वागत होना चाहिए। सबसे बेहतर है अगर आप उन्हें बैठकर प्रसाद खिलाओ। अगर प्रसाद नहीं खिला सकते तो उन्हें पानी दो, जल दो, कम से कम पीने के लिए। जल भी नहीं आप दे सकते तो बैठने का स्थान दो और मीठे शब्दों से स्वागत करो। पर समय को ऋषि ने बिल्कुल देखा ही नहीं राजा की तरफ, जिसके कारण राजा ने अपमान महसूस किया। और उन्होंने देखा उस संत की कुटिया के बाहर एक मरा हुआ सांप था। तो उसे लेकर हार के रूप में समीक ऋषि पर चढ़ा दिया। जब उसके बेटे ने देखा कि राजा गुस्से में निकल कर आगे बढ़ रहा है तो बेटे में जिज्ञासा थी, जाके पिता से पूछूं क्या वार्तालाप हुआ है राजा के साथ। और जब उन्होंने देखा एक मरा हुआ सांप था उनके गले में, हार के बजाय वो बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने उन्हें श्राप दिया। अगर परीक्षित महाराज चाहते तो इस श्राप का विरोध कर सकते थे। आखिर उनकी सुरक्षा भगवान ने की थी जब वो माता के घर में थे। परीक्षित महाराज ने पूरी सोचा कि चलो मृत्यु की तैयारी करें। और उन्होंने मिनटों में सूचना भेज दी जिसके द्वारा लगभग 64,000 संत तुरंत पहुंच गए। आपके SMS से ज़्यादा तेज कोई सुविधा होगी। और उन्हें श्रीमद् भागवतम सुनने का मौका मिला सुखदेव गोस्वामी के द्वारा। तो इस श्लोक में कहा जा रहा है कि मैं तो मृत्यु के द्वार पर था और मैं व्रत रख रहा था। और व्रत किससे? पानी का और खाने का, दोनों। और दोनों का व्रत रख रहा था।
और व्रत रखना 1 दिन के लिए आप रख सकते हो, 2 दिन के लिए रख सकते हो, 7 दिन के लिए 1 बूंद पानी नहीं लेना और कुछ खाना नहीं, तो ये बहुत कठिन है। तो परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि हालांकि ये बहुत कठिन था मेरे लिए, पर मुझे इतना आनंद आ रहा है आपके कमल मुख से ये सूचना और ये संदेश सुनने के लिए कि जो मेरी भूख और प्यास है बिल्कुल बुझ गई। तो इससे हमें क्या संदेश प्राप्त होता है? हमें ये संदेश प्राप्त होता है कि उसी प्रकार अगर हम सब जुड़े भगवान की भक्ति में तो हम भी भूख और प्यास से बच पाएंगे। आप कहोगे हमें कोई भूख और प्यास है ही नहीं, हमें तो प्रसाद मिल जाता है 3 दफ़ा दिन में आराम से, मुझे इतना पानी चाहिए पीने को मिल जाता है। भूख और प्यास है भौतिक आकर्षण के लिए, भौतिक कार्यों के लिए। हम भूखे हैं, हम सोचते हैं हमें कुछ और प्राप्त हो, इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ सुख और प्राप्त हो तो इससे हमें आनंद मिलेगा। पर जैसे प्रहलाद महाराज 7वें स्कंद में कहते हैं और इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी 7वें स्कंद के 2 प्रसिद्ध श्लोकों का उच्चारण कर रहे हैं, जिसमें जिनका संदेश यही है कि चाहे आप कितना भी प्रयास कर लो भौतिक समाज में, आपको असली सुख केवल जब मिलेगा जब आप आध्यात्मिक कार्य में जुड़े। प्रहलाद महाराज कहते हैं जिस व्यक्ति की इंद्रियां हैं जिस पर कोई वश नहीं, वो व्यक्ति केवल मृत्यु की तरफ पहुंच रहा है और वो पुनास पुनास चर्विता चर्वनाम, चबे जाने को फिर से चबा रहा है। हर प्रकार से हमने प्रयास किया है आनंद उठाने का, पर हम देखते हैं कि चाहे कितना भी प्रयास करें भौतिक समाज में कोई आनंद नहीं। कुछ हफ्ते पहले हमने आपको उस राजा की कथा सुनाई थी, सुबड़ी मुनि जिसकी 50 पत्नियां थी। उस सुबड़ी मुनि ने एक दफ़ा देखा मछलियाँ, वो सुबड़ी मुनि बहुत ऊंचे कोटि के योगी थे, वो उसकी तुलना नहीं कर सकते। तो सुबड़ी मुनि कई सालों से जल के नीचे अंडर वाटर बड़ी तपस्या कर रहे थे और उन्होंने देखा कि 2 मछलियाँ भोग विलास में की कार्य में जुड़ी हैं। तो उन्होंने सोचा कि हाँ इस कार्य में एक आनंद है, चलो मैं भी बाहर जाता हूँ भौतिक इस कार्य में जुड़ने के लिए। क्योंकि लंबे बाल थे, लंबे दांत थे इत्यादि। वो पहुँचे राजा के महल में, राजा से कहा आपकी 50 बेटियां हैं, मुझे 1 बेटी दे दो केवल विवाह के लिए। राजा ने जब उसके चेहरे को देखा वो पहचान गए, ये तो जंगली जैसा दिखता है, लंबे बाल लंबे दांत है। तो उसने कहा, पर वो राजा था तो राजनीतिक ज्ञान भी था, उसने बड़े डिप्लोमेटिकली कह दिया मैं तो बेटियों से की शादी जबरदस्ती नहीं करा सकता, पर अगर आप वो करना चाहें तो मुझे इतराज भी नहीं है। राजनीतिक रिप्लाई। तो उसको बड़े मुनि ने देखा, सब पत्नियों ने दरवाज़ा बंद कर दिया, सब बेटियों ने दरवाज़ा बंद कर दिया। तो वो समझ गए क्योंकि उनका देह इतना अदबा बदसूरत है, लंबे जंगली जैसे बाल हैं, वो तो अंडर वाटर रह रहे थे, जैसे सब मेरीन रहती हैं। तो उन्होंने अपनी योगिक शक्तियों के द्वारा अपने बदसूरत शरीर को इतना खूबसूरत बना दिया कि उसकी तुलना में कोई नहीं था। और जब वो वापस लौटे खूबसूरत देह के साथ, तो जो बहनें हैं उनमें झगड़ा हो गया
कि हर एक बहन ने कहा, मैंने पहले इसे चुना था पति के लिए। दूसरी बहन ने कहा, नहीं मैंने तुम्हारे से पहले हाथ उठाया था। तो 50 बहनों का झगड़ा हो गया, किसके साथ विवाह होना चाहिए। तो अंत में सवारी मुनि ने 50 को स्वीकार किया पत्नी के रूप में। पर थोड़ी देर बाद वो समझ पाए क्या कर दिया मैंने, मेरा सुंदर तपस्या का जीवन था। फिर वो वापस लौटे भगवान का चिंतन करने के लिए। 50 पत्नियां भी साथ आई तपस्या उठाने के लिए। तो इस प्रकार हमारे शास्त्रों में अनेक उदाहरण हैं जिनके द्वारा हमें ये संदेश प्राप्त होता है कि हमें किस प्रकार से आध्यात्मिक कार्य में जुड़ना चाहिए और कीमती दुर्लभ मानव देह का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। और अगर हम भगवान की सेवा में जुड़े हैं, तो जैसे परीक्षित महाराज को प्यास नहीं लगी, भूख नहीं लगी, आप भी इससे बच पाओगे। भगवान की गोवर्धन लीला में आप क्या देखते हो, इंद्र बड़े क्रोधित हो गए थे क्योंकि भगवान ने ये इंद्र यज्ञ रुकवा दिया था। इन्होंने सोचा मुझे इन ब्रिजबाजियों को सबक सिखा देता हो, ये छोटे बालक की क्या नाम मान रहे हैं। और इंद्र ने बहुत ही तेजी के साथ बर्फ वर्षा आई। उनका भाव था, उद्देश्य था पूरा शहर डूब जाए। ब्रिजवासी उनका हर स्थिति में एक ही मित्र रहता है, चाहे कठिन हो या लाभदायक। क्या है वो सब कृष्ण को जानते हैं। सारे ब्रिजवासियों ने देखा भगवान की ओर और भगवान ने क्या, तुरंत गोवर्धन पर्वत को बाएं हाथ के छोटी उंगली के आंखों पर उठाया और सारे ब्रिजवासी इस पहाड़ के ऊपर पहाड़ के नीचे आकर वर्षा से बच गए। और 7 दिन के लिए बारिश तेजी से बीती और सारे ब्रिजवासी केवल भगवान के चेहरे को देख रहे थे और उन्हें भी कोई भूख और प्यास नहीं लगी। अक्सर व्यक्ति भूख और वो प्यासा हो जाता है, पर क्योंकि वो जुड़े हुए थे भगवान के चिंतन में, और क्योंकि भगवान के चिंतन में जुड़े हुए थे, भगवान के चेहरे का दर्शन ले रहे थे, उन्हें बिल्कुल भूख और प्यास नहीं लगी। वो बिल्कुल आनंद में थे। जैसे परीक्षित महाराज यहाँ कह रहे हैं, जब से मैं ये भागवत का अमृत सुन रहा हूँ, ये भूख और प्यास चले गई। तो ब्रिजवासी वो जुड़े थे भगवान की सेवा में, भगवान के चेहरे को देख रहे थे, जिसका क्या परिणाम हुआ, इसका ये परिणाम हुआ कि उन्हें भी कोई भूख और प्यास नहीं लगी। तो हम जब भूख और प्यास की चर्चा कर रहे हैं, उसका अर्थ है भौतिक भूख, भौतिक प्यास। तो प्रसाद तो मिलेगा, पर हमें भौतिक भूख और प्यास से बचना है। तो संक्षेप में कहा जा रहा है कि हमें कृष्णा कथा में रुचि लेनी चाहिए, और अगर हम श्रवणम कीर्तनम में रुचि लेंगे तो हम बच सकेंगे। कैसे हम बच सकेंगे? भौतिक भूख और प्यास जिसके कारण हम भटक जाते हैं भौतिक संसार में। तो कृष्णा कथा में रुचि लेनी चाहिए। और भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं पृथ्वी पर क्यों? धर्म की स्थापना के लिए। जो भी कृष्ण कथा है, गीता में भगवान क्या कहते हैं? यदा यदा ही धर्म से ज्ञानी भवति भारत विषम धर्म से सिद्धात्मन सृजाम्य। मैं अलग अलग समय में प्रकट होता हूँ, किस लिए? धर्म की स्थापना के लिए। पारित्राणाय साधुना विनश्य च दुष्कृता धर्म संसपतार्थाय समभावी युगे युगे। भगवान प्रकट होते हैं अलग अलग समय अलग रूपों में, किस लिए? धर्म की स्थापना के लिए।
तो परम भगवान प्रकट हुए थे और उनके भाई भी थे, वो बड़े भाई थे जिनका नाम था बालराम जी। तो उनकी लीला आप 10वें स्कंद में प्राप्त करते हो। शुकदेव गोस्वामी ने भगवान की जो दिव्य लीला है उसका वर्णन जानबूझकर 10वें स्कंद में किया है, पहले 9 स्कंद में नहीं। प्रभुपाद जी ने इस विषय में कहा क्योंकि वो चाहते थे, उन्हें पता था अगर कोई 10वें स्कंद तक पहुँचेगा तो जब तक उनका शुद्ध हृदय शुद्ध हो जाएगा और समझ पाएंगे भगवान की रास लीला हो, कोई भी अद्भुत लीला हो कि वो संभव है। किसी साधारण व्यक्ति को अगर आप भगवान की अद्भुत लीला का वर्णन करते हो वो क्या कहता है, दिस इज माइथोलॉजी, ये तो कल्पना है, ये तो संभव नहीं हो सकता। आप उदाहरण के लिए अगर किसी को कहो कि भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, वो भी एक हाथ के छोटे उंगली के नाखून के बल पर, और उस स्थिति में जब तेजी से बारिश बरस रही थी, कोई भौतिकवादी स्वीकार करेगा नहीं। जब वो नरसिंहदेव भगवान का वर्णन आप करते हो वो कहते हैं इम्पॉसिबल, कोई बन सकता है आधा पुरुष आधा शेर। तो भगवान को समझने के लिए हमें हृदय को शुद्ध बनाना पड़ेगा और ये संभव है श्रवणम कीर्तनम के माध्यम से, जिसके विषय में श्लोक और तात्पर्य में ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो भगवान इसी प्रकार प्रकट हुए थे 5000 साल पूर्व धर्म की स्थापना के लिए। और भगवान के प्रकट होने से पहले उनके बड़े भाई प्रकट हो गए थे, वसुदेव और देवकी का विवाह हुआ था। कंस उनके भाई ने कहा मैं तुम्हें छोड़ के आता हूँ तुम्हारे घर पर। प्राचीन समय में जब शादियाँ भी होती थी बहुत ज़्यादा डाउरी दी जाती थी, जैसे कि जब वासुदेव और देवकी का विवाह हुआ तो उन्होंने उनके देवकी के पिता ने उन्हें हजारों रथ दिए सोने के और 200 दासी सेवक और सोना इत्यादि। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते उसका है। तो वासुदेव देवकी उन्होंने बहुत तपस्या की थी, 12,000 देवताओं के वर्षों के लिए उन्होंने कुछ खाया नहीं और पिया नहीं। उनका निरंतर चिंतन ये था कि हमें भगवान प्राप्त हो। किस रूप में? पुत्र के रूप में। ये थी उनकी इच्छा, भगवान को आकर्षित करना है। तो तपस्या एक माध्यम है। तीसरे स्कंद में भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं तपस्या परम ज्योतिर भागवतम अधोक्षजा, कि अगर आप भगवान को समझना चाहते हो तो तपस्या एक माध्यम है। आजकल हम तपस्या से डरते हैं, और अगर आप इन धर्म प्रचारकों को देखो, उनके उपदेश को सुनो, अब देखोगे कहाँ भी तपस्या का वर्णन नहीं होता, क्योंकि उन्हें पता है तपस्या की चर्चा करेंगे तो लोग भाग जाएंगे, लोग आएंगे नहीं। पर प्रभुपाद जी जब अमेरिका भी गए थे, कई उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप जो इस शिक्षा का पालन करने के लोगों को कहोगे 4 नियम, कोई नहीं मानेगा। तो वासुदेव देवकी ने 12,000 सालों के लिए बड़ी गहरी तपस्या की, कुछ खाया नहीं और कुछ पिया नहीं। परीक्षित महाराज की तो 7 दिन की बात है, और वासुदेव देवकी 12,000 वर्षों के लिए कुछ खाया नहीं पिया नहीं। केवल जो पत्ते पेड़ों से गिरते थे उन्हें ही खाते थे, बस।
अगर आपको ये खुराक दी जाए तो मंदिर का खर्चा भी बचेगा और जो दिन रात कुक्स की चिंता होती है वो गाँव गए आए नहीं, वो चिंता से भी बच जाओगे। और आजकल तो वृक्षों के पत्ते भी मुश्किल से प्राप्त हो रहे हैं क्योंकि पेड़ है ही नहीं। तो लालची व्यापारियों ने सारे पेड़ों को काट दिया है। वृंदावन में एक समय वन ही वन था, जंगल ही जंगल, पेड़ ही पेड़, इतना तक कि गोस्वामी भाई अलग अलग पेड़ के नीचे रहते थे रोज। पर आज आप वृंदावन में पेड़ों को कहाँ देखते हो? परिक्रम करो तो थोड़ा बहुत रास्ते में देखेगा कि पेड़ बचे ही नहीं। तो वासुदेव देवकी से सूखे पत्ते जो पेड़ों से गिरते हैं, ये थी उनकी खुराक। और उनकी इच्छा थी भगवान प्रकट हो पुत्र के रूप में। तो भगवान प्रकट हुए, पर उनसे पहले उनके भाई भी प्रकट हुए थे। तो वासुदेव देवकी का विवाह हो गया था और उनके भाई कंस उनको ले जा रहे थे उनके घर में छोड़ने के लिए। ये ऐसा रिवाज है अभी भी, जब शादी हो तो पत्नी का भाई छोड़ने जाता है, करता है। तो रास्ते में एक आकाशवाणी द्वारा संदेश मिला, हे मूर्ख कंस, तुम जानते नहीं क्या कर रहे हो? तुम अपनी बहन को जो बड़े उत्साह से घर ले जा रहे हो, तो तुम जानते नहीं कि इसका 8वां पुत्र तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा। तो कंस तो राक्षस स्वभाव का था, तुरंत ही मान गए कुछ खतरा है, चलो मेरी बहन का वध कर दिया जाए, तो ना पत्नी होगी ना 8वां बच्चा पैदा होगा। तो फिर वहाँ वासुदेव ने अपना दिमाग लगाया। प्रभुपाद जी कहते हैं तात्पर्य में कि अगर मृत्यु के समय कोई दिमाग लगा कर या चापलूसी से किसकी जान बचाए तो ठीक है। वासुदेव ने कहा तुम्हें तो 8वें बच्चे का डर है ना, तो 8वां बच्चा जब आएगा मैं तुम्हारे पास ले आऊँगा। पर आने में तो कंस ने अस्वीकार कर लिया। और फिर कंस को पता लगा कि भगवान के खानदान के सब सदस्य प्रकट हो चुके। तो क्या किया कंस ने? सारे बच्चों को जैसे एक पैदा हुआ मार देते थे। भगवान के प्रकट होने से पहले उनके बड़े भाई प्रकट हो गए थे। वो प्रकट हुए थे देवकी के गर्भ से, और वासुदेव देवकी के द्वारा जो भगवान ने जन्म लिया उसका क्या था साधन? जैसे साधारण बच्चे जन्म लेते हैं वैसे नहीं, वासुदेव के मन से यह भाव पत्नी के मन में गया और फिर भगवान प्रकट हुए। और जब भगवान प्रकट हुए वो प्रकट हुए अपने दिव्य रूप में, जन्मा कर्मा चामे दिव्य। और क्योंकि भगवान यकीन दिलाना चाहते थे अब मैं प्रकट हो गया हो, घबराओ मत, डरो मत। और फिर माता के कहने पर तुरंत ही उन्होंने साधारण बच्चे का रूप ग्रहण कर लिया। और भगवान और उनके पिता ने क्या किया? पिता की इच्छा थी ब्राह्मणों को दान दिया जाए, क्योंकि प्रभुपाद जी कहते हैं ये रिवाज है जब कोई धनी व्यक्ति ब्राह्मणों के पास जाता है तो दान देता है। तो कंस ने तो वासुदेव ने मन ही मन में 10,000 गायें सजी हुई सोने के साथ दान में दे दी। तो उनसे पहले उनके बड़े भाई प्रकट हो चुके थे, जो पहले प्रकट हुए थे देवकी के घर में, और उससे पहले ट्रांसफ़र कर दिया था रोहिणी के घर में। और महाराज नंद महाराज रोहिणी जो कि वासुदेव की पत्नी थी उनकी देखभाल कर रहे थे।
भगवान के प्रकट होने से पहले 6 असुरों का वध हो गया था। तो शास्त्र में कहा गया है ये जो 6 असुर हैं एक रूप से ये 6 दोषों के प्रतिनिधि हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य। अगर आप भगवान को समझना चाहते हो तो इन दोषों से हमें बचना पड़ेगा। भगवान को समझना इतना आसान नहीं है। कामा, लस्ट, कामा को आप कभी संतुष्ट नहीं कर सकते। भगवद गीता में भगवान से अर्जुन ने पूछा क्या कारण है कि जानते हुए भी तुम, हम जानते हैं ये गलत है ये कार्य, जब भी हम कर लेते हैं, क्या कार्य है? और भगवान ने क्या कहा? It is lust only, the heart is all devouring enemy of the living entity. It is burning like fire, it is never satiated. जो कामा का भाव है ये कभी दूर करना इतना आसान नहीं है। भगवान आगे कहते हैं ज्ञान की तलवार से तुम इसे नष्ट कर सकते हो। ज्ञान का अर्थ है आध्यात्मिक ज्ञान। समाज में भौतिक ज्ञान की कमी नहीं है, ज़्यादा कमी है आध्यात्मिक ज्ञान की। भक्ति सिद्धांत जी कहते थे इफ इट ऑल देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ एनीथिंग ऑन द प्लैनेट इट इज स्पिरिचुअल नॉलेज। इसलिए हम लोग प्रचार पर बल डालते हैं। तो कामा, क्रोध, लस्ट, एंगर एंड ग्रीड आर 3 हाईवेज टेकिंग यू टू हेल। सो क्रोध से भी हमें बचना है। कई बार भक्त पूछते हैं हमें बहुत क्रोध आता है क्या करें? तो प्रयास करोगे तो बच सकोगे। भगवान गीता में कहते हैं लस्ट, एंगर एंड ग्रीड आर व्हाट 3 हाईवेज गोइंग टू हेल। आप अगर इस मार्ग पर चलोगे ये रास्ता आपको नरक में पहुंचाएगा। अगर आपने नरक में पहुंचना है तो आप गलत स्थान में पहुंच गए हो। पर अगर आपने स्वर्ग में पहुंचना है फिर ठीक स्थान पर पहुंचे हो। तो भगवान कहते हैं क्रोध से बचो। काम, क्रोध, लोभ, माया, लोभ, लालच। बौद्धिक स्थिति में आप कभी भी किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते। अगर आप सोचते हो थोड़ा और लाभ हो जाए, थोड़ा और धन नफा बढ़ जाए, थोड़ी और सुविधा प्राप्त हो, हम संतुष्ट रहेंगे। आप कभी भी भौतिक कार्यों द्वारा संतुष्ट नहीं प्राप्त कर सकते। तो मोह, मद, मत्सर्य, द्वेष, ईर्ष्या ये भी एक बड़ा शत्रु है। आध्यात्मिक मार्ग में हमें द्वेष से बचना है। भगवान ने अम्भोगा के हृदय में हाथ रखकर कहा जब तक तुम्हारे हृदय में ईर्ष्या द्वेष है भगवान उधर निवास नहीं करेंगे। भौतिक समाज में हमें ईर्ष्या द्वेष से बचना चाहिए। तो ये जो 6 बेटे मारे गए ये है, इनकी तुलना की जाती है 6 अनर्थक के साथ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य। भगवान प्रकट हुए पर कब? इन अनर्थक का समाप्ति देखकर, जब इनका वध किया गया है उसके पश्चात भगवान प्रकट हुए। तो बालराम जी भगवान के क्या हैं? बड़े भाई हैं। और हमेशा जब भगवान प्रकट होते हैं बालराम जी भी प्रकट होते हैं। बालराम का अर्थ है बल, पर आध्यात्मिक बल, भौतिक बल नहीं। जब कृष्ण बालराम मंदिर का निर्माण हुआ था वृंदावन में 1975 में, प्रभुपाद जी ने कहा था इफ यू वांट स्ट्रेंथ देन वर्शिप लॉर्ड बालराम। तो बालराम जी प्रकट हुए थे और बालराम जी भी कौन है? भगवान के बड़े भाई। तो भगवान जब प्रकट होते हैं हमेशा उनके साथ बालराम जी प्रकट होते हैं। कभी बड़े भाई, कभी छोटे भाई, पर साथ में जरूर आते हैं। जैसे कि यही बालराम जी
प्रकट हुए थे, जब भगवान प्रकट हुए थे किस रूप में? रामचंद्र जी के रूप में। और बालराम प्रकट हुए थे किस रूप में? लक्ष्मण, छोटे भाई के रूप में। और छोटे भाई के रूप में उनके मन में एक ही भाव था, सदा भगवान की सेवा की जाए। 24 घंटे उनके मन में एक ही विचार था, राम की सेवा। 24 घंटे, इतना तक कि जब राम जी का विवाह हुआ और सीता विवाह के बाद घर आई तो सीता ने देखा उनके लिए कोई काम ही नहीं है घर में, जो काम वो करने जाती है लक्ष्मण पहले कर लेता है। तो सीता ने कहा मेरा यहाँ विवाह करने का क्या लाभ, मैं कोई सेवा ही नहीं कर सकती, जो काम मैं करना चाहती हूँ मेरे से पहले लक्ष्मण वहाँ पहुँच जाता है। तो उसने राम जी से शिकायत की, ये बड़ी कठिन स्थिति है, मैं कोई आपकी सेवा कर ही नहीं सकती, क्योंकि जहाँ मैं जाती हूँ लक्ष्मण पहले पहुँच जाता है। और जब लक्ष्मण को कहा, लक्ष्मण कहता है कि शुरू से मेरा यही उद्देश्य था, मैंने जन्म लिया था राम की सेवा करने के लिए, तो मैं किसी हालत में रुक नहीं सकता। तो भगवान राम के सामने ये बड़ी समस्या थी, क्या किया जाए। अगर भगवान लक्ष्मण का सहयोग दें तो सीता नाराज हो जाएगी, और सीता को सहयोग दें तो लक्ष्मण। तो भगवान ने कहा चलो गुरु जी के पास, तो अपने गुरु जी इस समस्या का हल करेंगे। तो गुरु जी ने हल किया। गुरु जी ने कहा जो घर का काम है, घरेलू काम, वो सब लक्ष्मण वो सीता करेगी, और जो भगवान का बाहर का काम है वो लक्ष्मण करेगा। तो लक्ष्मण बड़ा उदास था कि थोड़ी सेवा उनकी कम हो गई, क्योंकि तो ये लक्ष्मण के ये बालराम जी प्रकट हुए थे लक्ष्मण के रूप में। और लक्ष्मण के रूप में उनका क्या भाव था? सदा एक ही भाव, वो राम की सेवा। ये पर लक्ष्मण ने देखा कि उनकी सेवा भी कम हो गई है, और फिर जब सीता का हनन कर दिया था, किडनैप, तो लक्ष्मण तो नहीं जा रहे थे, और सीता ने कहा जाओ राम को बचाओ। तो उनका अभ्यास अच्छा नहीं था। तो लक्ष्मण ने निर्णय किया अगले जन्म में भगवान प्रकट हो गए, मैं बड़े भाई के रूप में आऊँगा। तो फिर वो आई बालराम के रूप में। तो बालराम के रूप में भी उनका एक ही भाव था, क्या? भगवान की सेवा, कृष्ण की सेवा। तो बालराम भी परम भगवान के विस्तार हैं। उनका एक नाम है संकर्षण, क्योंकि उन्होंने दो खानदानों को जोड़ा। एक नाम है बलदेव, बालभद्र, जिसका अर्थ है जिसकी उपासना के द्वारा क्या होता है? बल प्राप्त होता है, ताकत प्राप्त होती है। तो बालराम जी भी स्वयं भगवान है, और बालराम जी का ये सदा ये भाव था कि भाई की सुरक्षा, भाई की देखभाल। तो जिस प्रकार और भगवान जब प्रकट होते हैं क्या अपनी अद्भुत लीला प्रकट करते हैं, दिव्य लीला प्रकट करते हैं। और यही बालराम फिर प्रकट हो एक बार, वो किस रूप में? नित्यानंद रूप में। तो जब आप गौड़ निताई की पूजा करते हो तो एक रूप से आप कृष्ण बालराम की पूजा कर रहे हो, क्योंकि गौड़ निताई कौन है? वो भी बालराम जी के अवतार। तो यहाँ फिर वो पहले प्रकट हुए बड़े भाई के रूप में, फिर छोटे भाई के रूप में, फिर प्रकट हुए बड़े भाई के रूप में। और भगवान नित्यानंद ने प्रकट हुए थे चैतन्य महाप्रभु जी के आंदोलन को हर कोने में पहुँचाने के लिए। पीते पीते आँचे जाते नगरा।
और नित्यानंद ने क्या किया, सब जगह प्रचार किया। तो बालराम जी भी भगवान के पहले अवतार है। बालराम के द्वारा, जैसे भगवत में कहा है, ही इज द ओरिजिनल गुरु। पहले गुरु थे, सबसे पहले कौन? बालराम, संकर्षण। और उसी प्रकार जो गुरु है वो बालराम का प्रतिनिधि है। और गुरु की क्या इच्छा रहती है? बालराम के हाथ में क्या क्या होता है? एक तो हल होता है ना, प्लाव। तो हल से क्या काम करते हैं हम? मिट्टी निकालते हैं, कचरा निकालते हैं। उनके हाथ में एक और रहता है क्या? क्लब। क्लब को क्या कहते हैं? हाँ, गधा। एक उनके हाथ में एक गधा रहता है और हल। तो हल से हम क्या करते हैं? खोद कर खेती को सुधारते हैं। और गुरु को बालराम का प्रतिनिधि माना जाता है। तो गुरु का क्या है कर्तव्य? शिष्य के हृदय से मैल को दूर करना, शिष्य के हृदय को साफ बनाना, जिसके द्वारा शिष्य आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ सके। ये है गुरु की इच्छा। चेत ब्रह्मार्जनम भवमग्ध्वाग्नि निर्वापनम। चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? ये हरि नाम के उच्चारण से हृदय की मैल दूर होगी। तो गुरु की इच्छा है कि इस हल के द्वारा शिक्षा दी जाए, और शिष्य का कर्तव्य बनता है शिक्षा का पालन करना। तो गुरु की इच्छा है कि इस हल के उपयोग से जो मैल बैठी है हमारे हृदय में, उस मैल को क्या करना? उस मैल को दूर करना। ये जो अनेक नियम हैं, उदाहरण के लिए मंगल आरती में आना, नियमों का पालन करना इत्यादि, इन सब के पीछे यही उद्देश्य है कि हम हृदय से मैल निकालें। हम सबके हृदय में बहुत भारी मैल है। सच बात है या नहीं? प्रभु जी कहते थे कोयले से भी ज़्यादा काला, कोयले से भी ज़्यादा काला हमारा हृदय है। और अगर हम इस मैल को दूर करना चाहें तो आपके मन की कल्पना नहीं चलेगी। हमें क्या जो नुस्खा आचार्यों ने दिया है उसका हमें उपयोग करना पड़ेगा। हमारे आचार्यों ने हमें प्रामाणिक शिक्षा दी है, और अगर हम इस प्रामाणिक शिक्षा का लाभ उठाएं फिर आपके हृदय की मैल निकलेगी। और अगर हम इसका लाभ नहीं उठाएं, मनमानी कार्य करें, तो आप क्या देखोगे? आप रहोगे वहाँ के वहाँ और भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकोगे। भक्ति में आगे बढ़ने का क्या लक्षण है? हरि नाम में रुचि बढ़ना। हमारे में हरि नाम की रुचि है। हम खुद ही खुद माला का जाप करते हैं रोज। ये नहीं कि हमें डंडा मारना पड़ता है। माला का जाप चलो करो, फिर बाद में नाश्ता मिलेगा। खुद ही खुद रुचि है। खुद ही खुद रुचि है ग्रंथों के अध्ययन में। खुद ही खुद रुचि है जलपान कम हो जाए। खुद ही खुद रुचि है हम सेवा में आगे बढ़े, हम वैराग्य को प्रकट करें, वैराग्य निकले हमारे आचरण में, व्यवहार में। ये वैराग्य का भाव होना चाहिए और हमारे में विनम्रता का भाव उत्पन्न होना चाहिए। इन लक्षणों से हम देख सकते हैं हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। तो गुरु की इच्छा है, जैसे बालराम जी अपना हल का उपयोग करते हैं, कि ये जो शिक्षा जो परंपरा से आ रही है, जैसे कि प्रभुपाद जी ने हमें क्या दिया, वही शिक्षा जो उनके गुरु महाराज ने दिया था, और प्रभुपाद के प्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? वही शिक्षा दे रहे हैं जो कि प्रभुपाद ने दिया। तो जब हम इस शिक्षा का लाभ उठाए तो हृदय की मैल दूर होगी।
तो बालराम के हल और गदा के द्वारा हम हमारे हृदय के मिट्टी को दूर कर सकते हैं। तो बालराम जो गुरु है वो बालराम का प्रतिनिधि है और गुरु की इच्छा है हृदय की मैल को दूर किया जाए। तो बालराम जी की भी अनेक लीलाएं हैं। वैसे तो देखा जाए बालराम जी की अनेक लीलाएं उनके भाई के साथ हैं, कृष्णा बालराम। और हर जगह देखते हैं तो दोनों छोटे थे, एक साथ पले, एक साथ खेलते थे और कभी कभी झगड़ा भी होता था। जैसे जब एक समय बालराम ने शिकायत कर दी, आज हमारे भाई ने मिट्टी खाली खेलते एक वक्त। और जब माँ ने पूछा, सुना है तुमने मिट्टी खाई है? भाई ने क्या कहा, नहीं, झूठी शिकायत लगाई है मेरे भाई ने, क्योंकि उन्हें पता था कि आप डांटोगे तो आपकी डांट लेने के लिए। क्योंकि गोपियों ने कई बार शिकायत की, आपका बेटा हमारे घर में आकर हमारे घर में आकर दूध ये सब चुरा लेता है और कोई प्रमाण तो था नहीं। माँ पूछती थी, कोई प्रमाण है क्या? मेरा बेटा आपके घर से क्यों चोरी करे? मेरे घर में 9 लाख गायें हैं। तो बालराम ने देखा इसे तो माता कभी डांटती नहीं है, उनकी इच्छा थी कि वो डांटे, तो उन्होंने नई किस्म की शिकायत लगाई। तो बालराम की भी अनेक लीलाएं हैं जिन सबसे आप देखते हो कि वो हैं देवियों। बालराम की इच्छा नहीं थी कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ने के लिए। बालराम ने कौरवों को बड़ा उपदेश दिया कि इस युद्ध का कुछ फायदा नहीं, तुम जो पांडव भाइयों का हिस्सा है दे दो। पर ये मानते नहीं थे। तो अंत में क्या, जब युद्ध हुआ, यहाँ बालराम युद्ध के मैदान को छोड़कर चले गए कहाँ? तीर्थ के स्थानों की यात्रा करने के लिए। और बालराम अनेक तीर्थ के स्थानों में गए यात्रा करने के लिए। तो पूरे भारत की यात्रा कर ली थी और ये यात्रा करके कहाँ पहुँचे नैमिषारण्य। नैमिषारण्य बड़ा प्रसिद्ध स्थान है लखनऊ के पास, एक दिन वहाँ जाना चाहिए। वहाँ प्राचीन समय से संतों की सभा चलती है। बालराम जी वहाँ पहुँचे, एक सभा चल रही थी संतों की, जिसमें हजारों संत उपस्थित थे और रोमहर्षण सूता जो कि व्यासदेव जी के शिष्य थे वहाँ वो उच्चारण कर रहे थे। संतों ने उन्हें एक वर दिया था। वर ये था कि तुम्हें एक हम लंबी आयु दे रहे हैं, हजारों सालों की आयु। क्योंकि उन्होंने यज्ञ शुरू किया था जिसके जो कि बहुत लंबा चलने वाला था। तो उन्होंने रोमहर्षण सूता को बहुत लंबा वर दिया। तो जब बालराम जी पहुँचे उस स्थान पर, सारे संत महात्मा पहचान गए, ओह ये तो भगवान आ गए हैं, भगवान भी आए हैं। सब ने उठ के प्रणाम किया, सबने स्वीकार किया भगवान आए हैं। पर रोमहर्षण सूता जिसके मन में तेरा गौरव था, आखिर मैं व्यास साहब में बैठकर उपदेश दे रहा हूँ, मैं क्यों खड़े हूँ? तो भगवान ने सोचा कि ये ठीक व्यवहार नहीं है। तो भगवान ने कहा कि ये ठीक व्यवहार नहीं है और इन्हें सबक सिखाना चाहिए। तो भगवान ने क्या किया, कूसा घास लेकर छुआ, वो मर गए। आपको मारने के लिए A47 इस्तेमाल करना पड़ता है और बालराम जी को किसका वध करने के लिए एक घास काफ़ी है। तो जब
संतों ने देखा, ओह इनकी मृत्यु हो गई है। कहा हम क्या करेंगे, हमने तो खास वर दिया है। उन्होंने बालराम जी से कहा, संतों ने, शायद आपको पता नहीं ये जो यज्ञ हो रहा है इसकी आयु हजारों साल लंबी है, और हमने महर्षि सूता को खास वर दिया था कि हजारों सालों के लिए कोई रोकेगा नहीं। अब आपने हरे कृष्ण, अब आपने वध कर दिया है, तो हमारे यज्ञ को क्या होगा? तो बालराम ने कहा, बोलो तो मैं फिर से जीवित कर देता हूँ उसके लिए, मेरे लिए क्या कठिन है, कोई कार्य असंभव नहीं है। बोलो तो मैं उसे फिर से जीवित कर देता हूँ। तो संतों ने कहा, नहीं, यह आपकी इच्छा नहीं थी। आपकी इच्छा थी कि रोमांचक सूता को सबक सिखाया जाए, हम उसका विरोध नहीं करना चाहते। तो बालराम ने कहा, तो कुछ सजा दो मुझे, मैंने अगर गलती की है, कुछ अटोनमेंट करने के लिए कोई सजा दे दो। तो उन्होंने क्या कहा, पड़ोस में एक असुर रहता है जिसका नाम है सलवा, जो कि हमारे स्थान में हमें यज्ञ करने नहीं देता। जब भी हम बैठते हैं यज्ञ करने के लिए, ये सलवा आकर वहाँ उल्टी कर देता है, टॉयलेट कर देता है, हमारे यज्ञ को असंभव बना देता है। तो अगर आप उसको मार दो तो फिर हमें संतुष्ट होगी, क्योंकि उस बगीचे में बड़े अच्छे फूल हैं, वो बड़े अच्छे फल हैं, तो उन फलों को हम छू ही नहीं सकते क्योंकि वो राक्षस हो जाता है। तो बालराम ने कहा, बस इतना छोटा काम, वो 1 मिनट में हो जाएगा। तो बालराम गए जंगल में, हिलाया पेड़ को, वो पत्ते गिरने लगे, फल गिरने लगे। तो सूर ने समझ लिया कोई आया है मेरे जंगल के राज्य में। कौन है, किसकी हिम्मत पड़ी है यहाँ आने की, क्योंकि किसकी हिम्मत ही नहीं पड़ती थी वहाँ पहुँचने के लिए। तो उस असुर ने देखा बालराम यहाँ पहुँचे हैं, तो असुर अंदर आ गया और उसने बालराम को जोर से पाँव मारा, और बालराम ने फिर उसे पाँव से पकड़कर घुमा घुमा कर पेड़ों में फेंक दिया और उसकी मृत्यु हो गई। तो फिर संतों ने कहा, बालराम जी आपने अटोनमेंट कर लिया है, अब आप आगे तीर्थ के स्थानों में जाओ। तो बालराम तीर्थ के स्थानों में जा रहे थे और उन्हें रास्ते में सूचना मिली कि कुरुक्षेत्र का युद्ध लगता है ख़त्म हो गया है। मैंने तो पहले भी इनको उपदेश दिया था कि युद्ध में नहीं लड़े, और लगता है वो सोचे थे कुरुक्षेत्र का युद्ध ख़त्म हो गया, चलो मैं वापस चलता हूँ। तो युद्ध तो ख़त्म हो गया था, लाखों क्षत्रियों का वध हो गया था। तब पर जब बालराम सोच रहे थे तो बालराम उन्हें पता ये था कि दुर्योधन और भीमसेन का झगड़ा अभी भी चल रहा था। भीमसेन दुर्योधन ने गदा इस्तेमाल करने, क्लब इस्तेमाल करने की कला बालराम से ली थी। तो भीमसेन और दुर्योधन का टक 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 आप लोग ड्रामा में करते हैं, तो ये बहुत बड़ा झगड़ा चल रहा था। कई दिन बीत गए और ना भीमसेन जीत रहा था ना दुर्योधन। तो बालराम जी वहाँ पहुँचे, बालराम ने देखा दोनों को लड़ते हुए। तो बालराम को पता था किसी की विजय नहीं होगी,
क्यों? वो कहते थे भीमसेन जो है ताकत में तुम्हारे से ज़्यादा है। भीमसेन 10,000 हाथियों को रोक लेता था। और दुर्योधन जो है कि उन्होंने कला सीखी थी किससे? बालराम से। उन्हें पता था कि टेक्निक में दुर्योधन तेज है और बल में भीमसेन तेज है। तो बालराम ने उन्हें कहा अब ये युद्ध को बंद करो। दो इतने जोश में थे लड़ाई के कि उन्होंने कहा नहीं 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 वो लड़ देगा। तो बालराम ने लंबासूरा का भी वध किया, धेनु का वरा का भी कई और असुरों का वध किया। तो बालराम जी कौन है? भगवान के बड़े भाई, जिनकी शरण लेने से आपको आध्यात्मिक बल प्राप्त होता है। और ये आध्यात्मिक बल के द्वारा आप माया का विरोध कर सकते हो। एक दिन बालराम ने कृष्ण से कहा मुझे एक दिन के लिए कृष्णा बनने दो। तो कृष्ण का बोलो क्या है? मुझे आपका पीकॉक, क्या मोर पीकॉक, मोर पंख है। ये मोर पंख केवल बालराम और कृष्णा ही पहनते हैं। तो एक दिन के लिए बालराम की इच्छा थी कि कृष्णा बन जाए। तो कंस तो एक असुरों को भेज रहा था लगातार भगवान का वध करने के लिए। तो कंस केशी डीमन को आदेश देता जाओ वृंदावन में तुम्हें एक छोटा लड़का दिखेगा जिसने मोर पंख को पहना हुआ है। तो केशी दमन ने कहा कैसे पहचानूं मैं वो कौन है? वह पूरे वृंदावन में एक ही लड़का, एक ही व्यक्ति होगा जिसने मोर पंख पहना होगा। तो फिर तो उसने कंस ने कहा ये तो बहुत आसान है तुम्हारे लिए। तो वो असुर आया उधर, उसने देखा बालराम को मोर पंख पहने हुए। तो वो समय ये है कृष्णा। उसने आकर पीछे से बहुत जोर से पाँव मारा और बालराम को बहुत जोर से पाँव मारा तो इवन फ्लाइंग। तो बालराम ने जाकर अपने भाई से कहा ये लो तुम्हारा मोर पंख। एक दिन का अभ्यास, बड़ा भयंकर अभ्यास था। नो थैंक यू। और वो मोर पंख वापस कर दिया। ये स्टोरी कितनी बोनाफाइड है मुझे पता नहीं, पर तो बालराम जी हैं भगवान के बड़े भाई और उनकी सेवा से भक्ति में आप आगे बढ़ सकते हो। तो इस श्लोक में शुक्रिया गोस्वामी, इस श्लोक में परीक्षित महाराज कह रहे हैं वे भौतिक भूख और प्यास मिट गई क्योंकि मैं बड़े ध्यान से आपके शुक्रिया गोस्वामी के कमल मुख से क्या ये दिव्य संदेश सुन रहा हूँ। तो हमें भी श्रवणम कीर्तनम में रुचि लेनी चाहिए। ये जो उत्सव है, बालराम जयंती, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, इन सब के द्वारा हमें उन लीलाओं का स्मरण करने का मौका मिलता है। और जो व्यक्ति बालराम की लीलाओं को ध्यान से सुने उसे बालराम जी का प्रेम प्राप्त होगा। आप असुरों के विषय में पढ़ो तो देखते हो लगभग जो मेन असुर हैं भगवान के द्वारा 22 असुरों का वध हुआ था और बालराम जी के द्वारा केवल 3-4। हाँ, धेनुकासुरा, प्रलंबासुरा, धेनुकासुरा, एक और राक्षस था तालावान जंगल में। उस तालावान जंगल में भी बड़े अच्छे फल थे, फूल थे, सुगंधित फूल, पर वहाँ भी एक असुर बैठा था जो कि किसी संत को, किसी को वहाँ पहुँचने नहीं देता था। तो धेनुकासुरा ने देखा कि बालराम आए हैं, तो उन्होंने पीछे से आकर उन्हें मारा। तो बालराम ने बड़े आसानी से इस असुर का वध कर दिया। और बालराम के लिए क्या असंभव है। और फिर एक और डीमन था वो प्रलंबासुरा। वो बड़े सुंदर
वो बड़े सुंदर कपड़ों में आया। ब्रह्मासुर पर भगवान और उनके मित्र एक गेम खेल रहे थे। गेम ये थी, शायद ये गेम अभी भी खेलते हैं लोग। एक घोड़ा बन जाता था और दूसरा घोड़े के ऊपर बैठता था। हाँ, ये, और जो हार जाए उसे दूसरी पार्टी को उठाना पड़ता था। तो भगवान हार गए, तो भगवान को दूसरे को उठाना पड़ा। ये ब्रह्मासुर आया था वहाँ इस भाव के साथ कि दोनों भाइयों का वध करना है। तो ब्रह्मासुर भगवान बालराम को उठा रहे थे और वो ऊपर 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 जाते गए। फिर बालराम ने इतना अपना एक्सपेंड किया कि ब्रह्मासुर नीचे गिरे और उनका वध हो गया। तो इस प्रकार भगवान के अनेक लीलाएं हैं। तो लगभग 22 लीलाएं हैं जिनमें कृष्ण भगवान ने असुरों का वध किया। और बालराम ने देखा जाए तो असुरों का सिर्फ 3-4 असुरों का वध किया। पर भक्तिनाथ ठाकुर ने अपने ग्रंथ में कहा है कि इन लीलाओं का हम स्मरण करेंगे, इन लीलाओं को सुनेंगे तो उसके द्वारा हमारे हृदय की मैल दूर होगी। और हर लीला का एक संबंध है। जैसे कि रेणुकासुर की लीला कोई ध्यान से सुने तो फिर जो हमारा भौतिक आकर्षण है, कामा का प्रभाव है, इससे हम बच सकेंगे। तो ये जो असुर बनते हैं, ये भी एक रूप से भगवान के भक्त हैं और उनकी लीलाओं सुनकर अपने हृदय को शुद्ध बना सकते हो। हमें कृष्ण बुक को पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद ने सबसे पहले ये साउंड क्लियर है? हरे कृष्ण। वो तो लाइट कैसे चले गए? ओके। प्रभुपाद जब अमेरिका आए उस समय तक उन्होंने भागवतम का अनुवाद कर दिया था, फर्स्ट कैंटो और टीचिंग द लॉर्ड चैतन्य। फिर एकदम उसके पश्चात प्रभुपाद जी ने 10वें स्कंद का अनुवाद किया, भागवतम के 10वें स्कंद। क्योंकि प्रभुपाद जी ने कहा उनके शब्दों में, मुझे कुछ पता नहीं था कितनी देर और मैंने जीना है, मैं चाहता हूँ कि लोगों को प्रामाणिक अनुवाद प्राप्त हो। तो प्रभुपाद जी ने एकदम कृष्णा बुक का अनुवाद किया अंग्रेजी भाषा में। तो प्रभुपाद जी खोज रहे थे कोई धनी व्यक्ति के लिए जो कि कृष्णा बुक के अनुवाद में सहयोग, प्रकाशन में सहयोग दे। तो उन्हीं दिनों में प्रभुपाद ने अपने अमेरिकन शिष्यों को इंग्लैंड भेजा था प्रचार शुरू करने के लिए। और खास करके श्याम सुंदर का संबंध हुआ जॉर्ज हैरिसन से। आपने जॉर्ज हैरिसन नाम सुना होगा, ये बड़ा प्रसिद्ध संगीतकार था। हमारा लंदन का मंदिर आज करोड़ों पाउंड का होगा, वो उसने दान के रूप में दिया था। तो उन दिनों में श्याम सुंदर जो है, वो श्याम सुंदर शायद यहाँ आए थे दिल्ली मंदिर में, वो कल्टीवेट कर रहे थे जॉर्ज हैरिसन को। जॉर्ज हैरिसन वॉज अ न्यू डिवोटी। तो प्रभुपाद न्यूयॉर्क में थे। प्रभुपाद ने श्याम सुंदर को बोला, Why don't you go and ask George to print my Krishna book? तो श्याम सुंदर ने कहा, प्रभुपाद, जॉर्ज हैरिसन इज अ न्यू डिवोटी नाउ, और मैं उसे कहूँगा ये किताब छाप दो तो वो भाग नहीं जाए। नए लोगों से हम अक्सर चंदा नहीं मांगते। श्याम सुंदर कह रहा था, he's a new devotee Prabhupada and he may misunderstand. Prabhupada ने कहा, no, go and ask him, tell him your guru said he should do it. So उस वक्त तो जॉर्ज हैरिसन ने कभी प्रभुपाद का दर्शन भी नहीं किया था। तो श्याम सुंदर ने कहा, अब गुरु जी 2-3 बार बोल चुके हैं, इसका पालन करना चाहिए। तो श्याम सुंदर वापस इंग्लैंड आया and he went to George Harrison. उसने कहा, my spiritual master has translated the 10th canto in English, in Krishna. He wants you to publish it.
एंड जॉर्ज ने कहा हाउ मच विल दैट कॉस्ट? तो अंदाज़ा उस समय था 20,000 पाउंड। ये 20,000 पाउंड और कुछ सोचे बिगड़ जॉर्ज ने कहा ओके आई विल डू इट। तो फिर श्याम सुंदर ने कहा, श्याम सुंदर सोच रहा था ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। तो पापा ने कहा नो कोई ना आज के। तो फिर पापा जी ने 10 कैंटो को प्रकाशित किया। आप देखते हो 10 कैंटो में जॉर्ज हैरिसन के एप्पल लेव। सो बालाराम जयंती है कल, आज आदिवास है। तो हम लोग बालाराम जी से प्रार्थना कीजिए कि भक्ति में आगे बढ़ो और फिर थोड़े दिनों बाद जन्माष्टमी होगी। बालाराम जयंती की गौर पे मनाना। हरे कृष्णा। Okay, I have to go. Any questions? Announcements? ठीक सर। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज का प्रवचन के लिए। तो फिर से दोहरा रहे हैं कि अभी प्रवचन समाप्त होने के बाद यानी कि क्वेश्चन आंसर्स के बाद महाराज के पास मत आइएगा। वैसे पास रहिए लेकिन कोरोना की वजह से पास मत आइए, दूरी बना मैं के देख रहा हूँ कोई मास्क तो किसी ने पहना ही नहीं। मैं समझा कि उस दिन इष्टगोष्ठी हुई थी इसी विषय पर। यहाँ पुलिस वालों को बुलाएंगे तो आप सबको चालान मिल जाएगा। पुलिस वालों के नया साधन कमाई का है, जिसका मास्क नहीं हो उसको टिकट दी जाए। तो पुलिस वालों को बोल दो कि भागवतम क्लास में आ जाया करें। मास्क तो होना चाहिए। मैं देख रहा हूँ सबने निकाला हुआ है। मैं ख्याल से भक्तों को लगता है मंदिर के अंदर सेफ है, मास्क पहनना चाहिए। ओके सॉरी गो अहेड। हरे कृष्ण। तो जैसे पिछली बार अनाउंस किया था, उससे पिछली बार भी अनाउंस किया था, भद्र पूर्णिमा भागवतम मैराथन हमने शुरू कर दिया है। श्रीमद् भागवतम सेट्स इस बार हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक निकले और अभी तक 186 भागवतम सेट्स निकल चुके हैं, 186। उसमें महाराज जी की प्रेरणा से गुरु महाराज ने प्रेरित किया सभी भक्तों को और विशेष रूप से रासप्रिया प्रभु और उनके धर्मपत्नी राधिका माता जी विशेष धन्यवाद देंगे। महाराज ने उनको कहा था भागवतम सेट्स के लिए 37 भागवतम सेट्स वो ऑलरेडी कर चुके हैं। आप इधर आइए एक मिनट। राधिका कृपा किधर है? हमारे पास जो ऑन रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन है और आपके पास और एक्स्ट्रा हो तो आप बता सकते हैं। आप इधर आओ, लोगों को बोलो आप क्या करते। आजकल माँ से आप किसको पहचान नहीं सकते। लोग प्रणाम करते, मुझे तो पता ही नहीं रहता कौन है। तो उनको कहना पड़ता मास्क निकालो फिर पहचानो। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम गुरु महाराज। एक्चुअली गुरु महाराज से बात हुई जब मैराथन के लिए एंड देन ही सेड दैट आई शुड गो अहेड फॉर द भागवतम सेट्स एंड आई वाज प्रीचिंग फॉर ऑनलाइन लास्ट 4 or 5 months सिंस द लॉकडाउन। मार्च 22 से मैं लाइव ऑनलाइन लेक्चर्स दे रही हूँ एंड I have got around about 700 contacts, new contacts with me who are on my WhatsApp with me now. And out of them, I preached them and then immediately in 1 week they did like, still more are yet to be delivered and I've got around about say 45 sets from this temple and 1 set I did in London, directly from the manor. And then I've done 4 sets, 2 from Bahadurgarh and from Punjabi Bagh also. So nearly 50 sets I have done. पर मेरे ख्याल से आपका जो टारगेट है वो तो काफी ऊंचा है। Guru Maharaj has given me a very big target, a lifetime target, 1,000 Bhagavatam sets. Wait till Punjabi Bagh temple finds out the scores are going to Susant Nagar. Thank you, Guru Maharaj. Hare Krishna. So you keep a marathon going on till what date? तो भद्र पूर्णिमा, this is Bharda Purnima marathon, Maharaj. What is the Bhadra Purnima date? I think it's before Radhashtami.
2nd of September, till 2nd of September. But still we can continue distributing Bhagavatam sets whole year. But this is a special marathon which the Bhakti Vedanta Book Trust has told us to do. And फरीदाबाद के भक्तों ने भी बड़ा अच्छा कर दिया. गोपेश प्रभु के नेतृत्व में करीब 40 सेट्स वो लोग भी कर चुके हैं. तो आप सब भक्तों से प्रार्थना है इसके लिए. We should also encourage these people to read the books. Yes, Buy the books. तो महाराज जी कह रहे हैं कि हमें केवल वितरण ही नहीं करना है, श्रीमद् भागवत का अध्ययन भी करना है, श्रीमद् भागवत का श्रवण भी हमें करना है. ये भी बहुत जरूरी है. और दूसरा हमने एक बताया था पिछली बार भी कि हम लोग जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में एक यज्ञ कर रहे हैं जो कि 9 अगस्त को होगा, रविवार के दिन शाम को 5 बजे से, और राधा सेवक प्रभु इसको कंडक्ट करेंगे. तो आप में से कई भक्त लोगों ने अभी तक शायद रजिस्टर नहीं किया इसमें. तो जिन भक्तों ने नहीं किया, क्योंकि अभी तक करीब 110 लोगों ने ही इसमें रजिस्टर किया है, तो अधिक से अधिक लोग कृपा करके इसमें पार्टिसिपेट करें. आपको आने की आवश्यकता नहीं, ऑनलाइन जो है आप इसको देख पाएंगे. और अभी रिसेंटली पंजाबी बाग ने भी किया था, उनको बड़ा सक्सेसफुल हुआ. उसमें करीब 400 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था. नरसिंह भगवान के लिए यज्ञ किया था पीछे उन्होंने, तो काफ़ी उनको सक्सेस मिला. तो हम लोग चाहते हैं कि आप सब भी यहाँ पे जो दिल्ली मंदिर से जुड़े हैं ईश्वर के लाज से, वो इस यज्ञ में पार्टिसिपेट करेगा. इसके लिए इन्फॉर्मेशन आपको महाबल प्रभु देंगे, ये बता देंगे आपको सारा डिटेल्स. हरे कृष्ण. थैंक यू. हरे कृष्ण. शिल प्रभुपाद. ये अनुभव है सारे विश्व में, अमेरिका में भी, कि अमेरिका में भी यही बंधन है, लॉकआउट है, और वहाँ भी ये वायरस बहुत तेज़ी से जा रहा है. इंडिया से ज़्यादा तेज़ी, अमेरिका में ज़्यादा मृत्यु हुई है. पर वहाँ भी हमारे भक्त ऑनलाइन प्रीचिंग कर रहे हैं, और एक रूप से कईयों ने कहा है पहले से ज़्यादा हो रहा है. तो ऑनलाइन द्वारा आप ऐसा चमत्कार दिखा सकते हो. ये मायापुर के भक्तों ने किया था रथ यात्रा को ऑनलाइन, है ना. हाँ, एक और बात बताना भूल गए. मायापुर जो टेम्पल इस्कॉन मायापुर, उन्होंने भी संकल्प लिया हुआ है 2020 जो है इस साल, वो 2000 भागवतम सेट्स तक निकालने का प्रयास कर रहे हैं. ऑलरेडी वो ऑनलाइन उनको रिसीव भी हो रहा है काफ़ी भागवतम सेट्स के लिए. 2000 भागवतम सेट्स का उनका टारगेट है. और जैसे महाराज बता रहे हैं, गुरु महाराज बता रहे हैं, उस दिन महाराज बात कर रहे थे सोलिर बद्रीनारायण गोस्वामी महाराज से फ़ोन पे. तो महाराज ने बताया कि जब कोरोना बड़ा एक्टिव था वहाँ अमेरिका में, डेथ के केसेस बहुत ज़्यादा हो गए थे, उन्होंने कहा कि 20 भागवतम सेट्स उन्होंने अमेरिकन्स को दिए उनके घर जाकर. 20 भागवतम सेट्स अमेरिकन्स ने खरीदे, श्रीमद् भागवतम सेट्स वहाँ पे, जब कोरोना बहुत ज़्यादा एक्टिव था वहाँ पे. हरे कृष्ण. तो सब लोग उत्साह रखे. ये मैं सोच, कल और परसों में पूरे प्रॉपर्टी में शाम के समय गया था, काफ़ी भीड़ थी. कल कितने लोग आए थे? 1100 लोग आए थे. तो लोग आ रहे हैं. बॉम्बे, अफसोस की बात है, बॉम्बे में लॉकडाउन है, तो बॉम्बे में लॉकडाउन अगस्त के एंड में खुलेगा. तो हम जन्माष्टमी बहुत छोटे स्केल में कर रहे हैं बॉम्बे में. तो यहाँ भगवान की दया से अच्छी सुविधा है, उसका लाभ उठाओ. ओके, देखो. हरे कृष्ण. मुझे जाना है. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की. 10 बज गए ना. श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की.